So in this video, we're going to talk about how to solve sums regarding speed, distance, time, acceleration, velocity, displacement. Okay. So what we did in the first two video. So I'll just note down all the formulas. Okay, all the important formulas. What we're going to study in this video. So the first formula we did was speed is equal to distance upon time. Second was velocity is equal to displacement upon time. And the third is acceleration, which is changing velocity by time. Changing matlab v is your final velocity, final minus initial velocity upon time. Okay. Now the unit for this is meter per second, meter per second, meter per second square. This is with the direction because कौन सा quantity है, vector quantity है, yes or no. So mainly on this three formulas we're going to discuss about what the entire problem solving part. Okay, so what I'll do, I'll just start with the first problem, the simple problem, the conversion and everything. Okay, so the question might be asked is in kind of this manner, that is they have given 35 km per hour. Okay, this question is given, convert this into what, meter per second. Okay, we already know that if I need to convert kilometer per hour to meter per second, we have a multiplying factor which is 35 kilometer per hour into 5 by 18, right? Into what, 5 by 18, yes or no? It is not 35, it is 36 km per hour. Question is 36 km per hour. So 18 ones are, 18 twos are, answer is what? 10 meter per second square. So I have converted 36 km per hour to what, meter per second. Okay, so end में we need to write answer 36 km per hour is 10 meter per second and make a box of it. Okay. So this is the way you have to write, convert 36 km per hour into meter per second. So you 36 multiplying factor be 5 by 18. Yes or no? Nobody is going to cut your marks if you multiply 5 by 18. Or if you want to do an exact method, we know that क्या करना है, किलोमीटर per hour है, 1 kilometer is equal to 1000 and how much, 60 into 60 हम लोग ने किया conversion. So क्या करना है, ये जो आंसर यहाँ पे किया हम लोग ने, ठीक है? So तुम लोग क्या करोगे, अगर लॉन्ग मेथड करना है, so what we'll do, 36 into 1000 meters अपॉन क्या आ जाएगा, 1 hour मतलब हम लोग ने पढ़ा 1 hour मतलब how many seconds, 60 into 60. एंड ऑफ द डे आंसर वही आने वाला, 0 0 0 0 कट, राइट? क्या आएगा, 6 आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हो गया खत्म. 6 into 6 36 का आंसर क्या आया, 10 मीटर पर सेकेंड. यस, यहाँ पे सेकेंड है. समझा? एंड ऑफ द डे सेम आने वाला है. Either you can use this method or direct multiply about 5 by 18. Both are one and the same. You can do both the methods. ये करो या फिर direct 5 by 18 करो, that is also fine. ठीक है? Let's say some they are given in meter per second. ठीक है? So what they are giving is, let's say 50 meter per second. Convert करना है kilometer per hour. Again we know that how to convert it, right? Okay, 50 meter per second into क्या करूंगा, okay, 50 into क्या करूंगा, 18 by 5. So 5 ones are 5, 10. Answer is 180 किलोमीटर पर आवर. ओके, जब किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कर रहे थे तभी 5 by 18 से मल्टीप्लाई किया. जब मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कर रहे तभी 18 by 5 से मल्टीप्लाई करना है. और अगेन लॉन्ग मेथड क्या आएगा यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को क्या, इधर 1000 आ गया, इधर क्या आएगा 60 into 60 आ गया, इधर क्या 50 है. सो 60 into 60 इधर आ जाएगा into 60 into 60 अपॉन क्या हो जाएगा 1000. ये कट हो गया, ये कट हो गया. आंसर क्या आएगा, 6 into 6 36 into 5 is 180 किलोमीटर पर आवर. समझा? एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आइदर ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ सम्स
they might ask for 1 mark or 2 mark, ठीक है, 2 mark के लिए तो नहीं, 1 mark के लिए for sure they might ask in your paper, ठीक है. So next type of question, ठीक है, in your textbook, ठीक है, I have shared a PDF with you. So तुम्हारे textbook में some solved examples are given, वो मैं solved example यहाँ पे solve करने वाला. I'll say the number, ठीक है, so that you can refer the question. So I'm talking about now question number 3. So we are doing what question number 3, solved examples. Okay, so solved example में question number 3 क्या पूछा है, क्या बोला exactly. So the question is find the distance travel. तो method क्या follow करना है, always remember first, second, third, fourth. First is write the given, then find, to find, then here the formula, and last में solution, and the fifth one is what, write the answer in a box bracket. This 5 steps you have to follow. If you are following this 5 steps, nobody is going to cut your marks. ठीक है, I'm guaranteeing you. अगर ये 5 steps follow किया और आंसर तुम लोग का करेक्ट है with the unit, यहाँ पे यूनिट आना चाहिए, ठीक है, यूनिट हैज टू बी कंपलसरी. यूनिट भी रहेगा तो 2 में से 2, 3 में से 3, 5 में से 5, जितने मार्क का क्वेश्चन है फुल मार्क्स मिलने वाले. यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. नाउ मैं पूरा, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, सो यू हैव टू राइट इट इन योर बुक. ठीक है, आई माइट नॉट बी राइटिंग फॉर ऑल द क्वेश्चन बिकॉज जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा डेटा बड़ा होते जाएगा. ठीक है, जो गिवन रहेगा ज्यादा पूछेंगे. ठीक है, ये सो नो क्लियर है. सो आई स्टार्ट विद सिंपल फर्स्ट सम. क्या बोला वहां पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी. सो टू फाइंड क्या पूछा है, डिस्टेंस. ठीक है, in 5 minutes if it is traveling with a uniform speed. तो given क्या है, 5 minutes. क्या given है, time is equal to how much, 5 minutes, and speed is equal to how much they are given, 20 meter per second. yes or no. फाइंड क्या करना है. ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा हम लोग को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एज ऑफ नाउ ये रब कर देता हूं मैं. ठीक है, सो फाइंड डिस्टेंस करना है तो रीअरेंज करूंगा तो यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड बाय ओके स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में और ये मिनट्स में. ठीक है, अगर मैं लेट्स से सब्स्टिट्यूट करता, लेट्स से मैं सब्स्टिट्यूट किया, क्या टाइम क्या है 5 मिनट्स. ठीक है, और मेरा स्पीड है इंटू 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो आंसर मेरे को पता है डिस्टेंस किस में रहेगा, मीटर्स में रहेगा. बट यहाँ पे ये सेकेंड्स और मिनट्स कैंसिल नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ये यूनिट भी कैंसिल होना चाहिए. सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट 5 मिनट्स इनटू व्हाट सेकंड्स. यहाँ पे 5 मिनट्स नहीं लिखूंगा, मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा. यहाँ पे कन्वर्ट करना है बट स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्या लिखूंगा, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. सो 5 मिनट्स इज x सेकेंड्स. क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 300 सेकेंड्स. लिख दिया, यहाँ पे 300 आ गया. सेकेंड्स कट हो गया. ठीक है, क्या आएगा 300 इंटू 20, 3 2 6000 मीटर्स. तो दिस इज योर आंसर. लास्ट में आंसर लिखना, आंसर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6000 मीटर्स एंड बॉक्स. समझा क्लियरली. क्यों मैंने यहाँ पे मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज वो कट होना चाहिए. यूनिट्स क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए. ठीक है, अगर एक चीज आपको मीटर पर सेकंड में दिया, दूसरा भी क्या चाहिए, सेकंड्स में चाहिए. अगर ये आवर्स में है, ये भी आवर्स में चाहिए, ये मिनट्स में, ये भी मिनट्स में चाहिए. ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दो. आइदर मैं क्या कर रहा है, सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि 20 मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करो, मिनट्स, मीटर पर मिनट करो, वो डिफिकल्ट है. सो सिंपल ना, 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, सेकंड्स कट हो जाएगा. समझ रहा है. सो आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स और दिस इनटू सेकंड्स. तो मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, सो सेकंड्स कट हो गया. दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम इन your solved example. ठीक है, clear. Now I'll go to the what second next question. Next question is what, okay, so what I'll do, I'll take the question number 5. the question number 5 बोला है तुम लोग को. I'll go to the question number 5. ठीक है, सेम पांचों स्टेप फॉलो करना है. अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए. ठीक है, बोर्ड बहुत छोटा है. so what I'll do, I'll try to write it here. A body rises vertically up to a height of 125 meters in 5 seconds. So body, ठीक है, I draw a diagram here for a reference. Here is a what, a ground level. A body is rising. Here the distance from here to here is 125 meters. ठीक है, time in 5
seconds. Okay, 5 seconds is given. Yes, 5 seconds is given. Okay, so this is the given data. Okay, now if I write here given क्या दिया हुआ distance, or we can say height दिया हुआ height. ठीक है, height is equal to how much 125 meters. Time is equal to how much 5 seconds. क्या पूछा है यहाँ पे given to find में क्या पूछा है? You can read the question, come back to its original point, find the total distance, total displacement. Okay, 4 चीजें पूछी है. पहले फर्स्ट पूछा है टोटल डिस्टेंस, सेकेंड पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पूछा है एवरेज स्पीड एंड फोर्थ पूछा है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, सो एक एक करके फाइंड करेंगे. फर्स्ट विल फाइंड व्हाट टोटल डिस्टेंस. ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. सो नाउ द क्वेश्चन में क्या बोला कि अ बॉल और अ बॉडी, ठीक है, it is what rising to a height of what 125 meters and again coming back. So हम लोग का डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या आता है? टोटल पाथ कवर. टोटल पाथ यहां से 125 वापस 125, तो टोटल पाथ कवर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये रब कर दूंगा मैं तुम लोग को समझा के क्या क्या फाइंड करना है. ठीक है, तुम लोग को ऐसे लिखना है. देन व्हाट आई डू, आई राइट द फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस is equal to 125 plus 125 which is 250 meters. ठीक है, फिर टोटल यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, इफ यू वांट टू राइट अकॉर्डिंग टू द व्हाट डेफिनेशन ऑफ, यहां पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ व्हाट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. ठीक है, और फिर नेक्स्ट इज व्हाट टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 meters. नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाई 0 meter? इट इज ऑब्वियस. ठीक है, कि यहां पे मेरा बॉडी इनिशियली था, यहां से वो ऊपर तक गया and it is again coming back to its what original position, initial position. If it is again coming back to its initial position, yes or no, that means my displacement is 0. मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था तुम लोगों के. You guys are at home going to school, again coming back to home. तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो, राइट, कि तुम ट्रैवल करके वापस आ रहे हो. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 250 है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे. तो वो टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज इट इज कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल इनिशियल पोजिशन. That's why यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, लिख सकते हो, नहीं लिखना ही है, यहाँ पे लिखना है as it is coming back to its initial position. That's why displacement is 0. Reasoning is very much important. नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा. पता चलेगा कि से कॉपी किया हुआ. कॉपी करना इजी है, वो बोलेगा सेकंड का फर्स्ट का आंसर 0, बस तुम लोग 0 लिख दोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तुम लोग अरे मस्त मैंने कॉपी करके मार्क्स लिखा, बट नहीं मिलेगा बिकॉज रीजनिंग नहीं है. तुमको रीजन नहीं पता है कि क्यों 0 आया तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट. हैज टू बी There has to be a reason. लिखना पड़ेगा रीजन. क्लियर है? सेम ये चीज हो गया. नाउ क्या फाइंड करना है अपने को? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है? टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है 250 है. टोटल टाइम कैसे पता चला? 250 क्या है? मीटर्स. ठीक है, कैसे पता चलेगा टोटल टाइम? यहां से यहां पे 5 सेकंड ले रहा है, अगेन वापस आ रहा है तो कितना? 5. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 5, सो 250/10. आंसर क्या आएगा तुम लोग का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोग का? 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? 25 मीटर पर सेकेंड कैसे आया? यस, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हो गया. नाउ they are talking about what? The last thing. The last thing is what? Average velocity. Average velocity is what? Average velocity find करना. Average velocity क्या है? Total displacement upon total time. Total displacement 0 है upon 10. आंसर क्या आने वाला है? 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वापस रीजनिंग लिखना है यहाँ पे, वापस कॉपी करके कर सकते हो, बट रीजन क्या रहेगा यहाँ पे? एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, योर एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0. क्लियर है? समझा कैसे करना है ये सम? यस, वेरी गुड. एनी डाउट्स? यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई होप कि डाउट्स तो रहेगा नहीं, इतना इजी सम था. ठीक है, ऐसे इजी सम में डाउट्स आने नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 इन योर सॉल्व एग्जाम्पल. ठीक है, मैं रीड करता हूं. अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स. ओके, सो यहाँ पे गिवन लिखता हूं मैं. गिवन यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 मिनट्स. फिर
बोला है वेलोसिटी, ओके v1 इज इक्वल टू सी। मुझे कैसे पता चला t1 और v1 है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट, फिर सेकंड टाइम भी कुछ ट्रैवल कर रहा है, मैंने रीड किया हुआ है क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो t1 और v1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वापस यहाँ पे t2 दिया हुआ है, कितना टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है 40 मिनट्स के लिए, एंड मेरा v2 कितना है, v2 इज 40 किलोमीटर पर आवर, यस, ये गिवन है तुम लोग को, है। एंड पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड एवरेज वेलोसिटी। सो टू फाइंड टोटल डिस्टेंस पूछा है फर्स्ट, सेकेंड पूछा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दो चीज पूछा है, ठीक है। अभी हम लोग को पता है टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ये t1 और v1 दिया हुआ तो हम लोग d1 फाइंड कर सकते हैं, t2 और v2 दिया है तो d2 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम लोग अपने पास फॉर्मूला है स्पीड और क्या पता वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट s है तुम लोग का, राइट। सो v1 इज इक्वल टू व्हाट, s1 t1, s1 फाइंड करना है तो s1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 इंटू t1, v1 क्या है तुम लोग का 30 किलोमीटर पर आवर, और इंटू t1 कितना है 30 मिनट्स। नाउ अगेन प्रॉब्लम है यार, मिनट्स में नहीं आवर्स में, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करो, ठीक है। ऑलवेज सिंप्लीफाई करना है, इसको इजी होता है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। याद रखो ये यहाँ पे क्या बोला है, तुम लोग को 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना, हम लोग को पता है 1 आवर इज 60 मिनट्स, राइट। सो 30 मिनट्स इज इक्वल टू x आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 30 by 60 इज इक्वल टू हाफ आवर, दैट मीन्स 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच आवर, हाफ आवर। देखा ना 30 by 60 आया तो हाफ हो गया ना। सो कैन आई राइट 30 मिनट्स की जगह पे यहाँ पे हाफ आवर, आर कट हो गया, यस। आंसर कितना आएगा मेरा, s1 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स, आया नहीं आया, सिर्फ किलोमीटर्स बच गया, ये यूनिट सिर्फ किलोमीटर्स बच गए यहाँ पे, ये सौ सिर्फ किलोमीटर बच गया, आर कट हो गया तो 30 by 2 इज 15 किलोमीटर होना, s1 मिल गया मुझे, ठीक है। तुम बोलोगे सर हम लोग को तो टोटल डिस्टेंस पूछा, आप डिस्प्लेसमेंट क्यों फाइंड कर रहे हो, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट पे सेम रहेगा, योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, बिकॉज बॉडी इज ट्रैवलिंग, ट्रेन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ए टू बी जा रहा है, या फिर कोई भी पॉइंट से किधर भी जा रहा है, बट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, योर डिस्टेंस। इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, तो ऑटोमेटिकली वही क्या रहेगा, मेरा डिस्टेंस रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर है तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा 15 किलोमीटर। डिस्टिंग्विश में देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे पहले वाले समय देखा, समझा, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया तो डिस्टेंस ही फाइंड किया मैंने, समझा। क्यों मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, बिकॉज वेलोसिटी बोला है तो मैं डिस्टेंस नहीं लिख सकता। क्लियर, समझा कैसे आया s1, वैसे s2 फाइंड करो, चलो चलो चलो, वेरी गुड। s2 के लिए क्या करना है, s2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2, v2 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर इंटू t2 कितना है 40 मिनट, वापस मिनट्स, सो कन्वर्ट 1 r इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। सो x आवर्स इज इक्वल टू 40 मिनट्स, सो 40 बाय क्या आएगा 60, सो आंसर आएगा 2/3, ठीक है। अभी है ना एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर तुम लोग को ध्यान दिया रहेगा, तुम लोग को समझ गया रहेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज हो रहा है, जो भी गिवन मिनट्स है ना, ठीक है, उसको 60 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 60 तुम लोग का स्टैंडर्ड है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता ही है। जैसे ये गिवन था 30 मिनट्स, उसको किससे डिवाइड हुआ 60 मिनट से, ये गिवन था, ठीक है 40, उसको किससे डिवाइड हुआ 60 मिनट से। सो अगर मैं मेरे को 55 मिनट्स बोला है, उसको किस में कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो क्या आएगा 55 बाय 60 आवर्स। अगर मेरे को 35 मिनट्स दिया हुआ है, 35 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करूंगा 35 बाय 60 आवर्स। समझा, ये शॉर्टकट है, यूज कर सकते हो, देयर इज नो नेसेसरी कि ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, जरूरी नहीं है दिखाना ये सब वर्किंग, इट्स नॉट नेसेसरी, डायरेक्टली यू कैन डू दिस, यस और नो, इट इज अंडरस्टूड कि डिवाइड बाय 60 मतलब आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो व्हाटएवर गिवन मिनट्स आर गिवन, मिनट्स जो गिवन है उसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 60, एनीथिंग डिवाइड बाय 60 विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, आवर्स, ठीक है, समझा, यस, शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे 40 मिनट्स नहीं आएगा, क्या आएगा 2/3
3 hours कट हो गया, क्या आएगा 40 इंटू 2/3, सो आंसर आएगा 80/3 किलोमीटर्स। समझा, 80/3 किलोमीटर्स आ गया। ठीक है, नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो भी फाइंड करना है कर सकते हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट रहेगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 मिला था 15 प्लस 80/3, सो 45 प्लस 80/3, सो आंसर आएगा 125/3 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तुम लोग का क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस। अभी फर्स्ट चीज फाइंड किया, उसके पहले तो सब क्या था, आगे का काम कर रहे थे। ये तो फर्स्ट हम लोग ने अभी जो फर्स्ट फाइंड करने बोला था वो अभी फर्स्ट किया है, तो इसको बॉक्स में डालना है। ठीक है, क्या हो गया, ये टोटल लिख देगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये फर्स्ट चीज अभी मिला, सेकंड तो अभी फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड के लिए फाइंड क्या करना है, करो करो करो, चलो। सेकंड बोला एवरेज वेलोसिटी, तो क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना अपने के पास 125/3, टोटल टाइम वापस किस में चाहिए हम लोग को, आवर्स में, बिकॉज ये किलोमीटर्स में है। सो हम लोग को पता है, ठीक है, क्या था 30/60 आवर्स प्लस 40/60 आवर्स। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, ठीक है, मैं ये भी कर सकता था हाफ प्लस 2/3 जो हम लोग ने ओरिजिनल लिया। यहाँ पे एलसीएम करो, टाइम वेस्ट करो, सब करो। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है 60, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 70/60, चुपचाप कर दो, इतना इजी हो गया। यस और नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70/60। यस, हम लोग को पता है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 125 इंटू 60, 3 इंटू 70, 0 गया, 3 1 3 2 250/7, क्या आएगा 250 आंसर क्या आएगा 250/7। ठीक है, सॉल्व करके देता हूं तुम लोग को। यहाँ पे 250 और 7 है, तो 7 3 21, 3 4 0, तो 7 5 35, 0 5, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 7 7 49, 0 1 और एक 0 आया ऊपर से, यहाँ से 0 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आएगा 7 1 0 3, स्टॉप। दो डेसिमल के बाद दो ही नंबर लेना है, सो 250 डिवाइड बाय 7 इज 35.71। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 35.71 is your average velocity. Average velocity is meter per second. So average velocity is equal to 35.71. वापस मैंने बॉक्स में लिखा, दिख रहा है लास्ट आंसर है, तो सेकंड जो पूछा तो फाइंड कर लिया। 35.71 is your average velocity. क्लियर, समझा कैसे करना है, यस और नो। ये वापस मैंने क्यों आवर्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज किलोमीटर्स में है, समझा। ओके सॉरी, यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, माय बैड, सॉरी। ये किलोमीटर्स में है और ये आवर्स में है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ, समझा कैसे करना है, यस, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन को ठीक से रीड करोगे तो कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। You need to read the question very carefully. Now we are going to jump to the question number 8. Question number 8, ठीक है, it is related to acceleration. Let's see क्या पूछा है। The velocity of an object increases at a constant rate. So velocity increase हो रहा है, given में मैं लिख सकता हूँ initial from 20 to 50 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम मतलब इनिशियल, पहले क्या था, वेरी गुड, इनिशियल क्या करते हैं, u 20 मीटर पर सेकेंड, v 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियरली समझा, फ्रॉम 20 to 50 in 10 seconds फाइंड एक्सेलरेशन in t is equal to 10 seconds। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन, यस, सिंपल फॉर्मूला है, a is equal to v minus u by t। v कितना है 50 माइनस 20 अपॉन क्या आएगा 10, आंसर क्या आएगा 30/10, आंसर क्या आएगा, a is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सिंपल था, बोला था इनिशियली है, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इतने टाइम में, सब कुछ गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड है, v माइनस यू बाई टी। v 50 है, u 20 है, t 10 सेकेंड्स है, कैलकुलेट करके 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भूलना मत भाई लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कर सकते हो तुम लोग, समझा कैसे करना है। नाउ
नेक्स्ट एंड द लास्ट सम, ठीक है, लास्ट सम ऑफ दिस थिंग, ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ सम मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा है यहाँ पे, पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, एक पेबल, ठीक है, स्टोन पेबल समझ लो, वर्टिकली अपवर्ड्स ये थ्रो किया हमने, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब ये पॉइंट पे जब थ्रो करना स्टार्ट किया तभी इनिशियल u इज इक्वल टू क्या था, 50 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कम्स टू अ स्टॉप, नाउ जब भी वो यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, इट इज कमिंग टू अ स्टॉप, मतलब जो v फाइनल हो गया वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ हियर कम्स द मेन कंसेप्ट, ठीक है, इतना सब सॉल्व करने का मेन कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। जब क्वेश्चन में आ रहा है इट इज कमिंग टू अ स्टॉप, ठीक है, तो 0, इट इज कमिंग टू अ रेस्ट, वापस आएगा 0, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे पहले इनिशियल दिया हुआ है और बोल रहा है फाइनली वो रेस्ट या स्टॉप पे आ रहा है, रेस्ट बोला या फिर स्टॉप बोल दिया, ठीक है, तो फाइनल आपका क्या हो गया, फाइनल आपका 0 हो गया। बट काफी क्वेश्चंस में रहेगा इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, योर बॉडी, योर कार इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट से क्या हो रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। सो इनिशियली एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यस, समझ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, यस और नो, यू हैव टू वर्क आउट कि ये इनिशियली एट रेस्ट, ये हिंट है, समझा। अगर मैं गिवन लिखता हूं, लेट्स से मैं गिवन लिख रहा हूं, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन का गिवन लिखूंगा, तो गिवन में मेरे को क्या दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम समथिंग इज गिवन, समथिंग व्हाट इज गिवन, टाइम 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 5 सेकेंड्स, ठीक है, पूछा है रिटार्डेशन फाइंड करो r, ठीक है। हम लोग को पता है फॉर्मूला में सर, हम लोग को पता है एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी है, बट यहाँ पे सर v तो दिया नहीं है, बेटा दिया है क्योंकि वो हिंट है कि इट इज कमिंग एट स्टॉप और रेस्ट, मतलब v आपका क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनडायरेक्टली हिंट गिवन है, यस, तो क्या हो जाएगा v 0 माइनस 50 बाय 5, सो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस 50 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोला है, मैं तुम लोग को बोला था सेकेंड वीडियो में, एक्सेलरेशन लिखा है तो माइनस 10 आएगा, आइदर रिटार्डेशन लिख रहे हो तो क्या लिखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों में से ये, और दोनों में से एक ही चीज लिखना है, दोनों लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज लिखना है, ठीक है। a इज योर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा। रिटार्डेशन पूछा, क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा इनिशियल क्या है, सम वेलोसिटी, एंड आई एम कमिंग टू अ रेस्ट, मतलब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, कार को मैंने, ट्रेन को, कार को, जो भी बॉडी, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, राइट, मैं ब्रेक लगाऊंगा तभी मैं 50 से 0 आऊंगा ना, स्टॉप, तो रिटार्डेशन हुआ ना, एक्सेलरेशन हुआ, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, गेटिंग माय पॉइंट, अगर डिक्रीज हो रहा है, यस, क्लियरली समझा कैसे हुआ, यस। सो वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड, आई गिवन यू द हिंट, इनिशियली एट रेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये क्लियर हो गया, यस, तो यू कैन एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। सो होमवर्क में तुम लोगों को क्वेश्चन में जो पीडीएफ है वहां पे तुम लोग को पेज नंबर बोल दूंगा, यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन रेफर दिस व्हाटएवर मेथड आई हैव गिवन यू, बट रिमेंबर तुम लोग को लिखना जरूरी है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 मतलब गिवन, 2 मतलब टू फाइंड, 3 मतलब फॉर्मूला, 4 मतलब सोल्यूशन एंड 5 मतलब आंसर। बॉक्स में ये स्टेप्स फॉलो करना है। जब तुम लोग मुझे होमवर्क सबमिट करोगे, ये 5 स्टेप नहीं रहेगा, मैं वो 50 बार लिखने दूंगा क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मुझे फुल मार्क्स चाहिए, सम्स आर वेरी इजी इन फिजिक्स, अगर यहाँ पे तुम लोग मार्क खाओगे, तुम लोग का फिजिक्स का मार्क्स बहुत लो हो जाएगा, सो मेक श्योर ये स्टेप्स फॉलो करो, यस। एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी आर डन विद द प्रॉब्लम्स, ओके, थैंक यू।